Welcome to Evergreen Commerce classes. In this, we are going to start question 11 partnership fundamental. TS Keval. Nirmal and Pawan are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They had given loan to Pawan for 5 lakh. On 1st April 2023, interest was to be charged at 10% per annum. The firm took loan of 2 lakh from Nirmal on 1st December 2023. Before giving effect to the above, the firm incurred a loss of 10,000 for the year ended 31st March 2024. Determine the amount to be transferred to profit and loss appropriation. In this question, they have talked about two loans. One is given by the partner to the firm, another has taken by the partner from the firm. Okay, the question number 11, first we discuss it here. Firm has given a loan to the Pawan. पवन को फर्म ने क्या दिया है? एक लोन दिया है. ठीक है, क्या दिया गया है? एक लोन दिया गया है ऑफ अमाउंट 5 लाख, राइट. When the firm has given a loan to the Pawan, the rate of interest they have agreed is of 10%. The time period he has taken a loan is 1st April, means full year, April to March. The amount of interest on loan is 50,000, which the Pawan will give to the firm. Interest on loan given by the Pawan to the firm. This is the first case here. The second case is related to the Nirmal. Nirmal has given a loan to the firm. निर्मल ने क्या किया है? निर्मल ने फर्म को लोन दिया है. एंड द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दिस इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, पार्टनरशिप डीड इस पर नहीं बनाई गई. द अमाउंट ऑफ लोन विच इज गिवन बाय द निर्मल टू द फर्म इज 2 लाख. Rate of interest, we know that in the case when there is silence on the interest, then 6%, and the loan is given in the month of December, Jan, Feb, March, that is 4 months, 4 upon 12, then the interest is 4,000. We know that this interest which the Pawan has taken from the firm, and Pawan is providing interest on it. This is Pawan interest दे रहा है. This is income part for the firm. But here Nirmal, when the firm is taken a loan from the Nirmal से loan लिया है, तो interest on loan here it is a charge against profit. याद होगा हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो ये तो हो गया एक्सपेंस, वो हो गई थी इनकम, राइट. एक एक्सपेंस है, एक इनकम है. और फर्म को ऑलरेडी क्या हुआ है? बिजनेस में लॉस. एक लॉस है 10,000 का, प्लस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हमारा एक तरह से लॉस हो गया, उसको भी ऐड कर देते हैं. क्या हो गया? 14,000 का लॉस हो गया, बट इनकम भी हुई है 50,000 की. 50,000 माइनस 14,000, दैट इज 36,000, is a part of the profit which will be distributed to the partners in profit and loss appropriation account. ये है क्वेश्चन नंबर 11. इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के केसेस समझाए गए हैं कि जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था या फर्म पार्टनर से लोन ले रही है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है. ये 36,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. कम टू क्वेश्चन नंबर 12. In question number 12, what we are going to study is related to Ankit and Bhanu. Ankit, Bhanu and Charu are partners sharing profit and losses equally with a capital of 2,50,000 each. On 1st October 2023, Ankit and Bhanu gave loan of 2,50,000 each to the firm, whereas Charu took a loan of 1 lakh from the firm. On 1st November 23, it was agreed among the partners that Charu will be charged interest at 6% per annum. Interest on loan from partner was paid on 10th April 2024. The firm closes its book on 31st March every year. Pass the necessary journal entry in the books of the firm for the year ended 31st March 2024. We have to pass a journal entry in this question. ठीक है बच्चे, अगेन द सेम थिंग इज देयर आर थ्री पार्टनर्स हेयर. वन इज अंकित एंड भानु. अंकित एंड भानु बोथ हैड गिवन अ लोन टू द firm
फर्म को लोन दिया है। कितने का दिया है? 2,50,000 का। ठीक है, दोनों ने अलग अलग 2,50,000 का दिया है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें पता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6%। और लोन दिया गया अक्टूबर में, तो ये हो गया 6/12। तो हम से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7,500। सेम केस फॉर भानु, बिकॉज भानु हैज़ ऑल्सो गिवन द सेम। ये हो गया अंकित का, बिकॉज द अमाउंट एंड ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। तो भानु का भी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 7,500। तो ये अंकित और भानु का क्या निकल गया? इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। अब ये हो गया हमारा एक तरह से फर्स्ट केस। इन फर्स्ट केस क्या हुआ? पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया। सेकंड केस है, एक और पार्टनर है चारू। चारू ने क्या किया है? फर्म से लोन लिया। ठीक है, एंड हेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे एग्रीड इज 6% पर एनम। कितने का लोन लिया है? 1 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने एग्रीमेंट में करा है 6%। और लोन कब लिया गया है? नवंबर में। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो कितना आ गया? 5/12। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो बच्चे क्या आ गया? 2,500। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गई हमारी इनकम। और ये क्या हो गई हमारा? अच्छा, उल्टा बोल दिया। ये हो गया हमारा एक्सपेंस, क्योंकि अंकित और भानु ने क्या किया था? लोन दिया था। और चारू ने फर्म से लोन लिया था। तो ये हो गया हमारा इनकम पार्ट, वो हो गया हमारा एक्सपेंस पार्ट, और ये हो गया हमारा इनकम पार्ट। ठीक है बच्चे, चारू वाला हो गया इनकम वाला, इनकम, और अंकित वाला हो गया एक्सपेंस का पार्ट। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। जब फर्म लोन देती है तो वो हो जाता है, फर्म लोन देती है तो वो इनकम पार्ट हो गया, क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट देगा। लेकिन जब फर्म लोन लेती है तो वो हो जाएगा एक्सपेंस पार्ट। थोड़ी सी इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, कहते हैं जर्नल एंट्री पास कर दो। हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन और ये सब चीज़ें किसका पार्ट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो पहली एंट्री हम करते हैं ये भानु और अंकित के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में लिखते थे आप? डेबिट साइड में, है ना। आप डेबिट साइड में, आप इसको कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड में लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो कैसे लिखेंगे बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सेम एंट्री फॉर चारू एंड फॉर भानु। ठीक है, लेकिन अंकित एंड भानु। लेकिन चारू तो लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देगी फर्म को, तो दैट विल बी ए इनकम पार्ट। तो इसकी क्या हो जाएगी? ये किसकी थी? हमारी अंकित और भानु के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जब फर्म को चार्ज करना पड़ गया। अब हम करते हैं चारू के लिए। चारू की तो वो इनकम है, तो इसकी क्या एंट्री होगी हमारी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट कितना हो निकल के आया है? ये 2,500। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर हमारा है ये कौन सा? 12। ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा एक्सपेंस और इनकम पार्ट के बारे में। ओके, नाउ वी आर स्विचिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. What is the question number 13? Here, what is that question is, Atul, Jetha and Tarak are partners sharing profit equally. Jetha was given loan by the firm on 1st July 2023 of rupees 6 lakh. Book are closed on 31st March. Pass the journal entry. Rate of interest is not agreed, and second case, a rate of interest is to be charged is agreed at 10% per annum. Now in question number 13, what we have studied is कि in this case there are two partners. What is that? Jetha, three partner, Atul, Jetha and Tarak. Yeah, they are sharing profit equally. Jetha was given loan by the firm. ठीक है, जेठा वॉज गिवन लोन बाय द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जेठा ने
फर्म से लोन लिया है, राइट। जेठा ने फर्म से क्या लिया है, लोन लिया है, ठीक है। एंड फर्स्ट केस क्या कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एग्री नहीं किया गया। हमें पता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो जेठा इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी नहीं देगा। जेठा से इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, जेठा से कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ओके, बट इन द सेकंड केस what is that rate of interest is to be charged is agreed at 10% per annum. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, 10% पर एनम, ठीक है। एंड द डेट इज, कब लिया लोन, जुलाई में, तो जुलाई से काउंट कर लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो इंटू 9/12, व्हाट इज द आंसर इज 45,000। सिंपल सी बात है, ठीक है। जेठा से इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना होगा, 45,000। और जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, ये इनकम का पार्ट है क्योंकि जेठा देगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, that is 45,000 and here it is also 45,000. Come to question number 14. Okay, now we are switching to question 14. Parul, what is that question is, Parul, Paresh and Rahul are partners in a firm. Firm gave loan to Rahul on 1st Feb 2024 of 6 lakh. Interest was agreed and to be charged at 6% per annum. Rahul paid interest by check up to Feb 2024 on 5th March and the balance was paid by him on 5th April 2024. Pass the journal entry for interest on loan. बेटा हमें पता है अकाउंट्स कब क्लोज हो जाते हैं, 31 मार्च, और बैलेंस वो बाद में देगा। तो मतलब ये बात हो गई कि ये अमाउंट हमारा अभी तक नहीं पे किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्म गेव लोन टू राहुल। राहुल को फर्म ने क्या दिया है बेटा, अगेन द केस इज दैट कि फर्म ने राहुल को क्या दिया है, लोन दिया है, राहुल। एंड हेयर इट इज फर्म ने राहुल को क्या दिया, लोन दिया है, ठीक है। और कितने का लोन दिया है, 6 लाख का लोन दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिस्कस किया है, कितने का है, 6% का है। अगर हम कहें कि उसने पूरा इंटरेस्ट जो है कब लिया था लोन, उसने लिया कब था बच्चे, अप टू फेब तक पे किया है, ठीक है। राहुल, फर्म गेव लोन 1st फेब को, है ना, 1st फेब को दिया था। अगर पूरा फरवरी मार्च मतलब 2 महीने का ही देना था तो टोटल अगर करते तो 6,000 होता। लेकिन उसने क्या किया है, अप टू फेब का ही दिया है, मार्च का भी दिया ही नहीं है। मार्च का दिया ही नहीं है मतलब उसने 1 महीने का ही दिया है। तो 6 लाख इंटू 6% इंटू 1/12, दैट इज़, अभी उसने 6,000 में से 3,000 ही इंटरेस्ट जो है फर्म को दिया है अभी, और देना कितना है, 6,000। तो मतलब अभी भी राहुल के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो क्या एंट्री होगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अगर हमें पहले आउटस्टैंडिंग की एंट्री डालनी है तो कैसे डालेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग की डालनी है, कितना आउटस्टैंडिंग है, 3,000 है ना, 6,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज़ कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा, 3,000, ठीक है। अगर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, व्हाट विल बी द एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा ये तो इनकम का पार्ट है तो कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट विल बी 6,000, ठीक है। In this way we have completed question number 14 also. Okay, come to question number
Now 15. Profit and loss appropriation account. Vinod and Mohan are partner. Vinod's capital is 1 lakh and Mohan's capital is 60,000. Interest on capital is payable at 6% per annum. Vinod is to get a salary of 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. 15. Vinod and Mohan. Vinod's capital is 1 lakh. Mohan's capital is 60,000. The interest on capital is agreed at 6%. 1 lakh का 6%. बताइए कितना होगा? 6,000. ठीक है, ये क्या निकला? आइयो से 60,000 का भी हम निकालेंगे 6%. कितना आएगा? 3,600. ठीक है, ये निकल गया. कहते हैं प्लस क्या देना है? सैलरी भी देनी है, लेकिन सैलरी कहते हैं सिर्फ विनोद को देनी है. 3,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 36,000. ये हमने अपना नोट्स मेकिंग, अपना वर्किंग नोट एक तरह से तैयार कर लिया. अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन याद होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है. देखो इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है. कितने का प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट, जो आप लोगों ने कहाँ सीखा था? 11th में. बाय नेट प्रॉफिट जो सीखा था हम लोगों ने. एंड व्हाट इज दैट अमाउंट? इज 80,000. हेयर टू इंटरेस्ट. यहाँ पे बेटा पार्टनर्स को देना है, तो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. ठीक है, कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Profit and loss appropriation is an extension of profit and loss account. So it is a nominal account. In nominal account, all expenses are debited, all income profits are credited. तो interest on capital, interest on capital firm के लिए तो खर्चा ही है ना, पार्टनर को दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं? विनोद को और मोहन को. 6,000 एंड 3,600. ये ऊपर कैलकुलेट किया था अभी 6% के नाम से कैपिटल्स के ऊपर. 1 लाख की और 60,000 की, तो कितना निकल के आ गया? 9,600. अब टू सैलरी. सैलरी किसको दे रहे हैं? विनोद को. दैट इज 36,000. ये भी हमने कैलकुलेट करी अभी. ठीक है, अब हम इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पार्टनर्स को कैसे बांटना है वो दे. 80,000 और यहाँ क्या है? 36,000 एंड 9,600. इसको हम बांटना है. पहले इसको टोटल करते हैं जैसे हम नॉर्मली करते थे. दैट इज वे 45,600. 80,000 में से हम 45,600 को माइनस करते हैं, तो कितना आ जाता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स. व्हाट इज द पार्टनर? टू विनोद एंड मोहन. बेटा रेशो गिवन नहीं है कि किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इट विल बी डिवाइडेड इक्वली. व्हाट इज द इक्वल रेशो? यू नो व्हाट इज द इक्वल रेशो? 1:1 बिकॉज देर आर 2 पार्टनर. इफ देर आर 3 पार्टनर, तो व्हाट इज द रेशो? 1:1:1. 4 पार्टनर 1:1:1. तो 2 पार्टनर है, 34,400 को 1:1 में मतलब इक्वली बांटेंगे. कैसे बांटा जाता है इक्वली? आप देख लीजिए इक्वली कैसे बांटते हैं हम लोग. 34,400 को 1:1 मतलब 1 into 1/2. 2 कैसे आया? 1 + 1. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 17,200. तो इट इज़ डिवाइडेड इन विनोद एंड मोहन 17,200. ओके, हेयर द टोटल विल बी इक्वल, दैट इज 80,000. ठीक है, I think you people have understood. If you like the video, please like, share and subscribe.